Hi friends, continuing with our chapter number 7, rotation motion, part 2 of the chapter. In that, the story so far we had taken is, we had first taken the concept of rotational motion and rotational axis. After that, we saw that rotational motion ka study, that means rotational mechanics, is divided into two parts. One is rotational kinematics, studying purely about rotational motion. Second is rotational dynamics, studying about causes behind motion. बराबर है. अब रोटेशनल काइनेमेटिक्स हमने शुरू किया, उसमें सबसे पहले हमने लिया था पोजीशन के बारे में. तो एंगुलर पोजीशन गिवन बाय थीटा. द स्टोरी सो फार वी आर टेकिंग एंगुलर पोजीशन गिवन बाय थीटा, then change in angular position, that is angular displacement, that is theta 2 minus theta 1. Okay, then we related this displacement with linear displacement d equal to r delta theta. That was the relation between d and delta theta. Linear displacement and angular displacement. पहले पोजीशन पढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसको कनेक्ट कर दिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ में, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल. उसके बाद हमने लिया था एंगुलर स्पीड के लिए, एवरेज एंगुलर स्पीड वी गिव इट एज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. इसको कन्वर्ट किया इंस्टेंटेनियस स्पीड में डी थीटा बाय डी टी, एंड फिर इसको वेक्टर फॉर्म दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया डी थीटा बाय डी टी, जिसका डायरेक्शन अलोंग रोटेशन एक्सिस, इसका डायरेक्शन अलोंग रोटेशन एक्सिस, एंड दैट आल्सो यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल, यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल. ये हमने देखा था. ओके, फिर हमने इसको कनेक्ट किया इसके लीनियर काउंटर पार्ट के साथ, यानी कि वी टुक द लीनियर रिलेशन, एवरेज लीनियर स्पीड इज आर इंटू एवरेज एंगुलर स्पीड. इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला लिया, इंस्टेंटेनियस रिलेशन लिया, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस लीनियर एंगुलर स्पीड, सॉरी. ओके, एंड फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिया, तो v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार आया, ये हमने लिया. ओके, तो ये देखा था हमने लास्ट टाइम. इतना करने के बाद पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी and now comes acceleration. तो अब चलते हैं angular acceleration के लिए. Referring to the same figure, we had seen that suppose ये था rigid body rotating about a fixed axis. Suppose is a particle we consider rigid body से किसी एक particle को study कर, same will apply to all. ये उसका circular path of motion with center at O. ये उसका circular path of motion. Okay, this is a plane of motion of this particle. ये पार्टिकल प्लेन ऑफ मोशन ये रहा, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, ये पॉइंट और जहां से एक्सिस पास हो रही है, एंड दिस इज अ पार्टिकल एट पॉइंट पी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस. दिस इज सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल. ओके, फिर वी कंसीडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, द रोटेशन एक्सिस इटसेल्फ. Z is a rotation axis itself. Particle is at point P. चलो इसको अभी थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, शिफ्ट करते हैं. Particle is at point P at time t. ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया. Particle comes to Q at time t plus delta t. It comes to Q at time t plus delta t. बराबर है. तो Q P से Q पे आया in time delta t. ओके, तो कहानी को यूं शुरू करते हैं. Suppose at time t particles at point P having instantaneous angular velocity omega bar, and at time t plus delta t particle comes to Q having instantaneous angular velocity omega bar plus delta omega bar. यानी P से Q पे आया, from time t to t plus delta t, angular velocity change from instantaneous angular velocity change from omega bar to omega plus delta omega. Therefore, we can say that change in angular velocity of the particle is delta omega bar, and time taken for this change, time taken is delta t. Change कितना हो, दोनों में डिफरेंस ये हो गया, एंड कितने टाइम में हुआ, इतने टाइम में, बराबर है. Then we define average angular acceleration. Average angular acceleration we define it as change in angular velocity. This is the definition same as we have taken in chapter number 3. Change in velocity upon time taken
दैट गिव्स एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है तो वी गेट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। बाकी तो कहानी वही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो सिंबॉलिकली एंगुलर एक्सेलरेशन वी शो बाय अल्फा बार will be equal to change in angular velocity delta omega bar and time taken for this change delta t। ये हो गया एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। नाउ मूविंग फ्रॉम एवरेज टू इंस्टेंटेनियस क्या करना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो व्हाट यू गेट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन alpha bar equal to limit delta t tends to 0, limit delta t tends to 0 delta omega bar upon delta t, and there's nothing but d omega bar by dt, that is alpha bar। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सप्रेशन का फॉर्मूला। ओके, तो इसी इन दिस सीरीज वी ऐड टू मोर फॉर्मूला, एवरेज एंगुलर एक्सप्रेशन दैट इज d omega bar, sorry, एवरेज एंगुलर एक्सप्रेशन इज delta omega bar by delta t and instantaneous angular acceleration is d omega bar by dt। Now further here it's a vector quantity, angular acceleration is a vector quantity, तो उसका कुछ magnitude होगा, magnitude of this vector is given as, बार हटा दो, alpha equal to d omega by dt। okay, we also know that omega is d theta by dt, so we can put it like this also, d by dt of d theta by dt, and that makes d square theta by dt square, ये भी लिख सकते हैं, बराबर है। अब these equations are very much similar to average v bar average a bar, average acceleration is equal to delta v bar by delta t। ये फॉर्मूला कहाँ से है, चैप्टर नंबर 4 में से। फिर this is similar to a bar equal to dv bar by dt, that also we have studied in chapter number 4। तो लीनियर वैल्यूज के साथ में कंपेयर करें तो फॉर्मूला आर कमिंग ऑलमोस्ट द सेम, फॉर्मूले आर कमिंग ऑलमोस्ट द सेम। ओके, ये भी सेम है, कैसे, a इज इक्वल टू कुछ ऐसा सीखा था dv by dt एंड ऑल्सो d square r by dt square, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर। ओके, सो इक्वेशंस आर सिमिलर, क्लियर। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन it's always along direction of delta omega bar, it's always along direction of delta omega bar। अब हमारे केस में क्या है, here in our case we had taken that particle is revolving in plane perpendicular to rotation axis, we have taken particle to be revolving in plane perpendicular to rotation axis, तो इसलिए उसका ओमेगा बार कौन से डायरेक्शन में होगा, ये ओमेगा बार आ गया। p से q पे आए तो स्टिल इट इज इन द सेम प्लेन, तो ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा भी डायरेक्शन में आएगा along the rotation axis, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस द डेल्टा ओमेगा विल आल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन। तो हमारे केस में डेल्टा ओमेगा इज अलोंग रोटेशन एक्सिस, देयरफॉर अल्फा बार विल आल्सो बी अलोंग रोटेशन एक्सिस। तो हमारे केस में अलोंग रोटेशन एक्सिस, अपवर्ड या डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द राइट हैंड स्क्रू रूल। यानी फॉर अस लिमिटेशन, फॉर अस इन आवर 12th स्टैंडर्ड लेवल, इन 11th स्टैंडर्ड लेवल विल बी टेकिंग अल्फा बार आल्सो अलोंग रोटेशन एक्सिस, ओमेगा बार as well as alpha bar, यानी कि angular velocity and angular velocity and angular acceleration both will be along same direction, that is along rotation axis। okay, तो that is the situation here। ये हो गया। अच्छा, फर्दर हमने ये भी कमेंट किया था कि ओमेगा फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज सेम, तो अगर ओमेगा सेम है तो डी ओमेगा भी सेम होगा, इसका अल्फा भी सेम होगा। तो फॉर रिजिड बॉडी angular acceleration is same for all particles, for rigid body angular acceleration is same for all particles। okay, so this is regarding angular acceleration। 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। अब as per the tradition we used to define angular variable and then connect it to its corresponding linear variable, जैसे यहाँ पे हमने देखे similar equations। अब हमें क्या करना है, we have to connect this angular acceleration alpha with linear acceleration a bar, angular acceleration alpha bar को linear acceleration a bar के साथ में कनेक्ट करना है। we have to get a relation between linear acceleration and angular acceleration। okay, अगला टॉपिक ले रहे हैं इसके बाद, just go through this one।
Now we are connecting angular acceleration and linear acceleration. And what we are going to obtain is relation between linear acceleration a bar and angular acceleration alpha bar. As such, ये हमारे बुक में कवर नहीं किया हुआ है. This is not being covered in our book, so it's not pertaining to our syllabus. पर हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं? The reason is these are the fundamentals which are required to build the concept of rotational motion. यह भी नहीं, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी काम आने वाला है. ये टॉपिक यानी रोटेशनल मोशन वहाँ पे भी काम आने वाला है, जैसे हमने आगे बात कर ली है. Now, relating angular acceleration to linear acceleration is very much important because it gives us an idea how rotational motion takes place and how it is connected to the individual part. Rotational motion of the body, complete body, how it is connected to the individual particle, वो भी हमें यहाँ पे insight मिलता है. Now, linear acceleration a bar. When we try to connect it to angular acceleration alpha bar, we are not going into the mathematical derivation of that, but we take the idea or understanding about it. Linear acceleration a bar, when we obtain a relation with alpha bar, we find that this linear acceleration a bar is resolved into two components. एक component को बोलते हैं AR bar, it's radial acceleration. इसको बोलते हैं radial acceleration, यानी radial component of linear acceleration. रेडियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सलेशन बोलो या फिर रेडियल एक्सलेशन बोले चलेगा. एंड दिस AR बार इज गिवन एज ओमेगा बार क्रॉस V बार. इट्स गिवन एज ओमेगा क्रॉस V. इसका मैग्नीट्यूड, इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड AR इज इक्वल टू ओमेगा V साइन थीटा. ना ओमेगा इन V बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तो दिस विल बी ओमेगा इनटू V. We know that V equal to R omega, तो रख दो यहाँ पे, तो this will be R omega square also. Now as we place in place of we put R omega, तो we get R omega square, एक relation. And even अगर ओमेगा को रिप्लेस करते हैं as V by R, ओमेगा को रिप्लेस करते हैं as V by R, then this comes out to be V square by R. जाना पहचाना फॉर्मूला है हमारा, जाना पहचाना फॉर्मूला ये. Obviously yes, this we are studying chapter number 4. In case of uniform circular motion, that is the formula for centripetal acceleration. अब यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं. डायरेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ ए बार, ए बार के इस कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या है? तो इट इज ऑलवेज अलोंग आर बार एंड टूवर्ड सेंटर, अलोंग रेडियस एंड टूवर्ड सेंटर. इसको चलो आर बार लिखने के बजाय अलोंग रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड टूवर्ड सेंटर, यानी कि इसको दूसरे वर्ड में वी कैन आल्सो कॉल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द सेम थिंग एंड दिस हेल्प्स द पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी टू रिमेन ऑन द सर्कुलर पाथ. ये वहां पे हेल्प करता है. इसका काम रोटेशनल मोशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर रोटेशनल मोशन करने वाली बॉडी का जो पार्टिकल है हु इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ओके, दूसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग AT बार बोलते हैं, एंड इट्स कॉल्ड T फॉर टेंजेंट, तो इट्स कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो आप बोलोगे लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट तो हमने अभी पढ़े नहीं चैप्टर नंबर 4 में. नहीं, ये चैप्टर 4 की बात नहीं है. इट इज लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. रोटेशनल मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, रेडियल एंड टेंजेंशियल. टेंजेंशियल कंपोनेंट का फॉर्मूला आता है कुछ अल्फा बार क्रॉस आर बार, अल्फा बार क्रॉस आर बार. इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? AT इक्वल टू आर अल्फा साइन थीटा. ना थीटा इज 90 डिग्री अगेन हियर, रेडियस पोजीशन वेक्टर एंड अल्फा बार बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. एक अलोंग रोटेशन एक्सिस, दूसरा अलोंग द प्लेन है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 हो गया, तो दिस आर अल्फा. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है आर अल्फा, एंड इसका डायरेक्शन is tangent to path, along tangent to the path, is directed along tangent to path, along tangent to path at that point. उस पॉइंट पे पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन होता है. ओके, अब इन दोनों को विजुअलाइज करते हैं, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वन विच इज अ पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन का पार्ट है वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. ये सेंटर O था,
पार्टिकल यहाँ पे पी पे था. अब द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कुलर, बराबर है. इट इज अ पार्ट ऑफ सम रोटेटिंग रिजिड बॉडी, याद रखना ये, इट्स अ पार्ट ऑफ सम रोटेटिंग रिजिड बॉडी. इसका एंगुलर एक्सेलरेशन तो अल्फा हमने देखा, दैट्स अ लॉन्ग रोटेशन एक्सिस लाइक दिस, वो यूं है. इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन देखें तो इसके लीनियर एक्सेलरेशन के दो पार्ट, एक रेडियल कंपोनेंट along center towards the center, along the radius towards the center, and दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट AT बार. ये दो कंपोनेंट हो गए इसके लीनियर एक्सप्रेशन के. कौन है ये, अ पार्टिकल विच इज अ पार्ट ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, उसके लीनियर एक्सप्रेशन के दो कंपोनेंट AR बार एंड AT बार. AR bar is along the radius toward the center and AT bar is tangential to the path. Obviously AR bar का काम क्या है, पकड़ के रखना है सर्कुलर पाथ पे, तो इट्स मोर और लेस सेंटीमीटर फॉर एक्सेलरेशन, बराबर, पकड़ के रखता है पार्टिकल को. जबकि रोटेशन मोशन के लिए रिस्पांसिबल कौन है, AT बार. ऑब्वियसली अल्फा इज प्रेजेंट हियर. अल्फा इज वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, बराबर है. तो अल्फा रिस्पांसिबल चेंजिंग एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली यही कंट्रीब्यूट करेगा रोटेशनल मोशन में. तो लीनियर एक्सप्रेशन के दो कंपोनेंट, उसमें से रिस्पांसिबल कौन है रोटेशनल मोशन के लिए, टेंजेंशियल कंपोनेंट. इट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेशनल मोशन. इससे जब कभी भी वी ट्राई टू रिलेट लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर रोटेटिंग बॉडी, वी ऑलवेज टेक अ रिलेशन A इज इक्वल टू R अल्फा. जैसे V इक्वल टू R ओमेगा लिया, जैसे D इक्वल टू R डेल्टा थीटा लिया. तीनों तीन देखो सिमिलर फॉर्मूला है. लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर स्पीड विद एंगुलर स्पीड, लीनियर एक्सेलरेशन विद एंगुलर एक्सेलरेशन. तो उस टाइम पे हम लोग ये लेते हैं, क्यों, क्योंकि दिस इज द वन, टेंजेंशियल कंपोनेंट इज द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन में रिस्पांसिबल है स्पीड बढ़ाने में, स्पीड कम करने में, टू इंक्रीज एंगुलर स्पीड, टू डिक्रीज एंगुलर स्पीड, टू स्टॉप द रोटेटिंग बॉडी और टू मेक इट मूव, स्टार्ट द मोशन. अल्फा इज रिस्पांसिबल एंड दैट अल्फा इज प्रेजेंट इन टेंजेंशियल कंपोनेंट. And so we take the tangential component as a normal relation between linear acceleration and angular acceleration. आपको रेफरेंस बुक्स में ये फॉर्मूला डायरेक्टली मिल जाएगा, बट व्हाई दिस ओनली, देयर इज अनदर कंपोनेंट आल्सो. ये रहा, इसे भूलना नहीं है, ये भी है, ये भी है. ओके, पर मेन क्यों पकड़ते हैं इसको, क्योंकि रीजन इज इट इज द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेशनल मोशन. क्लियर, तो दैट्स व्हाई वी टेक द टेंजेंशियल कंपोनेंट. मैंने नोट्स में ये सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में, बट यू नीड नॉट गो इनटू दैट डिटेल, क्योंकि आवर बुक डज नॉट कवर इट. ओके, तो आपको उसे सिर्फ जस्ट गो थ्रू फॉर इंफॉर्मेशन, डोंट रिमेंबर इट और डोंट प्रिपेयर इट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो ये हो गया कनेक्शन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन. एक और बात यहाँ पे, ये DVA, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड एंड लीनियर एक्सेलरेशन, दीज आर लीनियर कंपोनेंट्स, दीज आर वेरिएबल्स ऑफ लीनियर मोशन, दीज आर वेरिएबल्स ऑफ लीनियर मोशन, तो इनको लीनियर वेरिएबल्स बोलेंगे. जबकि इधर देखो तो उनके काउंटर पार्ट अल्फा, ओमेगा एंड डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दीज आर वेरिएबल्स ऑफ रोटेशनल मोशन, बराबर है. तो इनको बोलेंगे एंगुलर वेरिएबल्स, लीनियर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स. अब हमने क्या पढ़ा था थियरी में कि डेल्टा थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी. डेल्टा थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी रोटेट हो रहा है तो उसमें किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो, जो वैल्यूज आएगी वही सब पार्टिकल्स के लिए भी है, एंड फॉर द रिजिड बॉडी आल्सो. जबकि DV एंड A को पकड़ो तो फॉर ईच पार्टिकल एज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज डिफरेंट, देयरफॉर DV एंड A आर डिफरेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स. यानी फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडी एंगुलर वेरिएबल्स आर सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, बट लीनियर वेरिएबल्स आर नॉट सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स. तो इफ यू वांट टू स्टडी रोटेशनल मोशन, व्हाट इज प्रेफरेबल, एंगुलर वेरिएबल्स के लीनियर वेरिएबल्स? हाँ, लीनियर वेरिएबल्स का हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से पढ़ते आ रहे हैं, 3, 4, 5, 6 पढ़ लिया है, फिर अब 7 चैप्टर में देख रहे हैं इसे. तो वी हैव अ गुड एक्सपर्टीज ऑन लीनियर वेरिएबल्स, वी नो हाउ टू हैंडल देम वेरी इजीली. बट व्हाइल स्टडीइंग रोटेशनल मोशन, कंसीडरिंग लीनियर वेरिएबल्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. क्यों? क्योंकि आर हर एक के लिए अलग होता है ना. तो फॉर एवरी पार्टिकल DV एंड आर डिफरेंट, DV एंड A आर डिफरेंट. तो अगर रोटेशनल मोशन को स्टडी करना हो तो हर एक पार्टिकल का रोटेशनल मोशन स्टडी करना है, लीनियर वेरिएबल्स यूज करने हैं, तो हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग होंगे. यानी यू हैव टू कैच ईच एंड एवरी पार्टिकल सेपरेटली. अब सोचो किसी बॉडी में इनन्यूमरेबल पार्टिकल्स विल बी देयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी देयर, किस किस के पीछे दौड़ोगे?
सबको अगर देखने जाओगे, हर एक पार्टिकल को पकड़ने जाओगे तो तुम्हारी स्टडी पूरी कभी होगी नहीं, इसलिए इट इज एडवाइजेबल टू यूज एंगुलर वेरिएबल्स एट दैट टाइम. तो टू स्टडी रोटेशन मोशन as delta theta omega and alpha, the angular variables are same for all the particles. We normally use these variables, or it is advisable to use angular variables rather than linear variables to study rotational motion. क्यों? क्योंकि जो एक का है वो सबका है, इसमें हर एक के लिए अलग अलग है, तो process become complicated and tedious. Therefore, it is advisable to use angular variables to study rotational motion rather than linear variables. No doubt we know linear variables are very well, but it is advisable to use these, क्योंकि नहीं तो उसमें तो खो जाएंगे, हर एक पार्टिकल को ढूंढने गए तो बहुत बैड बन जाएगी अपनी. Clear about this? So that is regarding which type of variables you should use. एंगुलर एक्सीलरेशन का कनेक्शन हो गया लीनियर एक्सीलरेशन के साथ, बराबर है. तो यहाँ पे हमारी एक्सीलरेशन की स्टडी खत्म होती है, बराबर है. चलो, आफ्टर कंप्लीटिंग पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, let us move on to the equations of uniform motion. सेम चीज हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ी, चैप्टर 4 में भी पढ़ी. चैप्टर 3 में देखा था उसको स्केलर फॉर्म में, चैप्टर 4 में देखा था उसे वेक्टर फॉर्म में. तो वही चीज वापस से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर रोटेशनल मोशन के लिए. ओनली डिफरेंस इज नाउ इट इज रोटेशनल मोशन. चलो, जो हमें याद है उसकी बात करें तो अ पार्टिकल स्टार्ट विद एंगुलर स्पीड विद इनिशियल स्पीड v0, attains the speed v, moving with an acceleration a, covering a distance d in time t. ऐसी कुछ कहानी थी. A particle starts with initial speed v0, attains the speed v, moving with an acceleration a, covering a distance d in time t. The equation we got was v equal v0 plus at. दूसरा था d is equal to vot plus half at square. तीसरा था 2ad is equal to v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर. चौथा हमने एक्सेप्ट किया था v0 प्लस v एवरेज स्पीड इनटू टाइम. आने पांचवा हमने लिया था ड्यूरिंग nth सेकेंड फॉर्मूला डिस्टेंस कवर्ड का dn इज इक्वल टू v0 प्लस a/2 इंटू 2l माइनस 1. ये फॉर्मूला हमने लिए थे चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में सम्स करते हो, बराबर है. कहानी कुछ ऐसी थी एंड ये इक्वेशन हमने ऑब्टेन किए थे. इसी को कनेक्ट करते हैं रोटेशन मोशन के. कहानी में फर्क क्या पड़ेगा? रोटेटिंग रिजिड बॉडी स्टार्ट्स विद एंगुलर स्पीड ओमेगा 0, attains an angular speed omega, moving with an angular acceleration alpha, covering an angular displacement theta in time t. वही सेम कहानी. स्टार्टिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा 0, attaining an angular speed omega, moving with an angular acceleration alpha, covering an angular displacement theta और एंगुलर डिस्टेंस थीटा इन टाइम t. टाइम का तो लीनियर वेरिएबल या एंगुलर वेरिएबल सेम ही है. ओके, अब इक्वेशंस कनेक्ट करें तो देखो v इक्वल v0 प्लस at, तो इधर आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा t. अ सिमिलर इक्वेशन. डिस्प्लेसमेंट d, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर. तीसरा इक्वेशन सिमिलरली सोचे तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर. चौथा जो हमने एक्सेप्ट किया था वो थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस ओमेगा एवरेज एंगुलर स्पीड इनटू टाइम t. फिर ड्यूरिंग nth सेकेंड फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस कवर्ड थी टाइम, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड थी टाइम इज ओमेगा 0 plus alpha by 2 into 2n minus 1. So you can clearly see that is a similar formula. So all are similar formula, just a translated version. Linear motion से rotation motion में translated version है. So ये तो हमने derive किए थे, इसमें हमें derive करना जरूरी नहीं क्योंकि हमारी बुक उसे कवर नहीं करती है. If you want to derive it, then we have taken the method, exactly same method you can write for this also. Exactly same method you can write for this also. तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि चैप्टर नंबर 3 और 4 में इन फॉर्मूला पे बहुत सारे सम्स थे. इवन हमने असाइनमेंट में भी काफी सम्स की है. तो फिर यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली सेम सम्स कैन कम बी फॉर्म फॉर दिस आल्सो. यू कैन क्रिएट एग्जैक्टली द सेम सम्स फॉर दिस आल्सो. क्लियर? तो रोटेशन मोशन में भी वही टाइप के सम्स आ सकते हैं, खाली इनमें सब में चेंज कर दें. लीनियर के बदले रेगुलर लिखने का, यूनिट में मीटर पर सेकंड के बदले रेडियन पर सेकंड, मीटर की जगह रेडियन लेना, दैट्स ऑल. तो दिस आर द इक्वेशन ऑन व्हिच सम्स कैन कम. A lot many sums can be created.
चैप्टर 3 के जो भी सारे सम्स हैं इन फॉर्मूला के रिलेटेड सेम कैन बी यूज फॉर, कैन बी क्रिएटेड फॉर दिस ऑल्सो। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड रोटेशनल मोशन। यहाँ पे काइनेमेटिक्स और रोटेशनल मोशन खत्म हुआ, काइनेमेटिक्स और रोटेशनल मोशन इज ओवर। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू डायनेमिक्स, यानी चैप्टर 5 के साथ कनेक्टेड यहाँ पे रोटेशनल मोशन के कॉजेस के पीछे पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद कंसेप्ट ऑफ टॉर्क, देन एंगुलर मोमेंटम एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 3 हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे अगले लेक्चर्स में। ओके, तो यहाँ पे वी आर एंडिंग काइनेमेटिक्स और रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद dynamics or rotational motion, in which a very important quantity will be covered, that is torque. Very important quantity. Okay.